Okay, welcome back to the channel, and we are going to start the part of this chapter. As you could see on the screen, the red lines. In those days, we are going to explain here this part of the chapter. In those days, the Ramzo iron mill was owned by a very prominent iron master. Okay, for the recap of the previous paragraphs, I would like to tell you something that when rat trap seller, I mean the paddler, that strange man was unable to find a make a way to come out of the jungle, he given up. Okay, he had given up and fell on the ground. After some time, he heard the thumping sound of the hammer uh, from anywhere. He could feel the vibration. So it was very clear that there would be something. I mean, men are working around him. So he decided to stagger himself and, hardly carried his body to the iron mill. What was the scenario in the iron mill? There were two men working at night. It was the time of 10 or 11 o'clock p.m. Two men were working there. दो आदमी वहाँ काम कर रहे थे. One was the iron smith, iron master, and second was his apprentice. I mean helper. ठीक है. What were they doing? They were working with the pig iron to make a solid one to be produced in the market by the iron owner. Okay, I mean the iron mill owner. So Paddler, that strange man, opened the door without being noticed, and they did not pay attention that there is somebody who is opening the gate. Okay, as he staggered himself near the oven, जैसे जैसे वो भट्टी के करीब अपने आप को ले जा रहा था, he wanted a permission to stay, to have a shelter for that night over there. उस रात वो वहाँ ठहरना चाहता था और without better hospitality, बिना अच्छी मेहमान नवाजी के the iron master allowed him to stay for that night. उस रात आयरन मास्टर ने उसको परमिशन दे दिया कि ठीक है, यूं इंडिकेटिंग, ठीक है तुम यहाँ रह सकते हो. ठीक है. अब पैडलर was there. Meanwhile, what happens? For the inspection, okay, the owner of the iron mill went or kept going or visiting night rounds and day rounds daily for watching the performance and manufacturing of solid iron. For the inspection, the iron master, I mean the owner of iron mill, went for his night round on that time. The time was, night, and he went there at night. When he saw that old man, who was the old man? He was very critical. He was in very critical condition. He was not wearing well, dress and long beard, very worn out clothes that he was wearing. He was lying around the furnace. भट्टी के आसपास लेटा हुआ था. And what happens? This paragraph has been given about that iron mill master, I mean the owner of iron master. Here, in those days, Ramzo iron mill was owned by a very prominent iron master. बहुत ही प्रसिद्ध और मेहनती आयरन मास्टर के द्वारा ओन की गई थी. whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. And what was the ambition and target of that iron master? Was to produce good iron in the market, only to be famous and popular in the market and for his manufacturing. He watched both night and day to see that work was done as well as possible. Okay, I mean for the inspection, जांच पड़ताल के लिए वो राउंड्स पे आया करते थे. And at this very moment came into the force on one of his nightly rounds for inspection. जांच के लिए इस रात वो अचानक फोर्स में आ गए. फोर्स का मतलब यहाँ मिल से है. ठीक है. Naturally, the first thing he saw of the tall
ragamuffin who had eased his way so close to the furnace and that steam rose from his wet rags. Okay, naturally, प्राकृतिक तौर पे फर्स्ट थिंग ही saw that tall ragamuffin. ragamuffin का मतलब यहाँ पे आप ट्रैम से बोल सकते हैं, रैट ट्रैप सेलर से बोल कह सकते हैं, या पैडलर भी बोल सकते हैं, स्ट्रेंज मैन भी बोल सकते हैं. आई मीन ही वॉज सो क्लोज टू द फर्नेस. ओके, एंड स्टीम, स्टीम का मतलब भाप होता है. रोज फ्रॉम हिज वेट रैग्स, वेट मीन्स भीगा हुआ, रैग्स मीन्स द ड्रेस ही वॉज वेयरिंग, जो वो ड्रेस पहने हुए था वो गीला था, भीगा हुआ था, इसलिए उस कपड़े से स्टीम राइज हो रही थी. स्टीम का मतलब भाप होता है. when something is wet and when it will be close to the furnace or steam, you know, heat, it will make steam, okay, rise from the wet rag. तो कपड़े से जो है भाप निकल रही थी क्योंकि कपड़ा भीगा हुआ था. अगले स्टेटमेंट को देखते हैं. द आयरन मास्टर डिड नॉट अलाउ द एग्जाम्पल ऑफ द ब्लैक स्मिथ्स हु हैड हार्डली deigned to look at the stranger. Okay, the iron master was not as same as the person, the iron master who was working in the mill. दोनों में बहुत अंतर होता है. This prominent iron master is so kind hearted. Okay, तो ये उस तरह से नहीं कर पाया. आई मीन ही कुड नॉट रिफ्यूज द ragamuffin, आई मीन द पैडलर. वो पैडलर को इग्नोर नहीं कर पाए, उन्होंने बड़ी ध्यान से उसके तरफ देखा. ओके, नाउ हु हैड हार्डली डैंड. अब ये डैंड का मतलब रिफ्यूज करना होता है, इग्नोर करना, अंडरस्टिमेट करना. कौन अंडरस्टिमेट किया था? दैट आयरन मास्टर हु वाज वर्किंग विद हिज हेल्पर इन द मिल. ही डिड नॉट पे अटेंशन, ही इग्नोर्ड द स्ट्रेंजर. लेकिन आयरन मास्टर जो ओनर हैं उनके अंदर इस तरह का स्वभाव नहीं है. ही हैज़ कंपैशन and feeling for a human being. He walked close to him, looked him over very carefully. Iron Master went so close to the ragamuffin and watched very carefully. बड़े ध्यान से उसको देखते हैं. Then tore off his slouch hat and get a better view of his face. Then he took off his slouch hat. Slouch hat का मतलब होता है, इस तरह की हैट होती है, ठीक है, वो लगाए होते हैं, और उस हैट को वो हटाते हैं. ही टुक ऑफ हिज हैट टू गेट अ बेटर व्यू ऑफ हिज फेस. उसके चेहरे, ठीक है, उसके चेहरे को देखने के लिए उन्होंने अपने टोपी को हटाया. उसके बाद क्या होता है? बट ऑफ कोर्स इट्स यू Nils Olof, he said, how do you look? दिखते कैसे हो तुम? Now, but of course, वास्तव में हुआ क्या? Nils Olof, यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजिंग होगी, इसलिए मैं आपको क्लियर कर दूं. जैसे ही आयरन मिल के जो ओनर होते हैं उसकी हेड को हटाते हैं चेहरे को देखने के लिए, तो यहाँ पे ही फॉल्स इन कंफ्यूजन एंड अ मिसअंडरस्टैंडिंग. ठीक है, एक गलत फहमी उनको होती है. आई मीन ही वॉज ए स्ट्रेंजर, ही वॉज नॉट द सेम whom he recognized, जिसको उन्होंने रिकॉग्नाइज किया आयरन मिल के ओनर ने. जैसे क्या होता है कि हम किसी से मिले और हमें लगा कि ये तो मेरा फ्रेंड है जो आज के 8 साल 10 साल पहले मेरे से मिला था, ठीक है, तो ऐसा ही हुआ. लेकिन एक्चुअली में वो स्ट्रेंजर वो नहीं था, निल्स ओलफ नहीं था, ठीक है. लेकिन आयरन मास्टर जो है, आई मीन आयरन मिल के जो ओनर हैं, इनको लगता है कि ये जो आदमी है वो निल्स ओलफ है. हाउ डू यू लुक, तुम दिखते कैसे हो? अब ये निल्स ओलफ था कौन? लेट अस नो इन दिस next paragraph. The man with the rat trap had never before seen the iron master at Ramzo and did not even know what his name was. Okay, the man with the rat traps. अब ये पैडलर की बात करी जा रही है कि जो आदमी है रैट ट्रैप बेच रहा, हैड नेवर बिफोर सीन द आयरन मास्टर. ये इस आदमी को कभी नहीं देखा था जो आयरन मास्टर के, आई मीन आयरन मास्टर जो हैं, जो आयरन मिल के जो ओनर हैं, उसको ये स्ट्रेंजर कभी नहीं देखा था.
ठीक है, एंड डिड नॉट इवन नो व्हाट हिज नेम वाज, और ये भी नहीं जानता था कि इनका नाम क्या है, और वो आदमी उसको अपना दोस्त बता रहा है कि यू आर नील्स ओलफ। मिसअंडरस्टैंडिंग है, कहीं ना कहीं वो गलत आदमी को अपना दोस्त समझ बैठा है। कौन समझ बैठा है? द ओनर ऑफ द आयरन मिल, ठीक है। लेकिन यहाँ क्या है कि रैट्रैप जो है, जो रैगामफिन है, वो पूरी तरह से अननोन है ओनर से, ठीक है। वो नहीं जानता, न कभी देखा है, न उसका नाम जानता है, एनीथिंग एल्स। बट इट occurred to him that if he fine gentleman thought he was an old acquaintance, acquaintance का मतलब क्या होता है? फ्रेंड, कंपनी में, ठीक है। He might perhaps throw him a couple of kronor. Therefore, he did not want to, undeceive him all at once. ठीक है। अब यहाँ क्या है, ये जो रेड ट्रैप सेलर है, ये इस चीज को सोचता है कि अगर ये आदमी बहुत अच्छा होगा तो ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनोर, वो कुछ क्रोनोर उसको दे देगा, ठीक है। क्रोनोर का मतलब रेड ट्रैप सेलर जो है वो बहुत लालची इंसान है, ठीक है। वो सोचता है ही हैज द एक्सपेक्टेशन टू हैव मोर एंड मोर मनी, एनफ हॉस्पिटलिटी, ओके। अब वो सोच रहा है कि अगर मैं रिफ्यूज करता हूँ कि नहीं भाई मैं आपका कोई दोस्त नहीं हूँ, तो हो सकता है कि ये मुझे यहाँ से निकाल दे या फिर मुझे कुछ न दे, और अगर मैं बोलता हूँ कि हाँ आपका मैं फ्रेंड हूँ, तो हो सकता है कुछ क्रोनोर ये भी मुझे दे दे। Therefore he did not want to undeceive him all at once, ठीक है। अब यहाँ पे समझने की बात क्या है, इस चैप्टर में यहाँ पे undeceive लिखा हुआ है इस पैराग्राफ में, ठीक है। Therefore he did not want to undeceive, deceive का मतलब होता है चीट करना, ठीक है। It means to cheat, but undeceive का मतलब चीट ना करना, और यहाँ पे did not लिखा हुआ है, मतलब वो नहीं चाहता था कि मैं इसको डिसीव न करूं। इट मीन्स हम पॉजिटिव सेंस में ले लेंगे कि वो चाहता था कि उसको डिसीव करे, ठीक है। इज इट क्लियर? दिस लाइन इज क्लियर एवरीबडी? ये कौन है भाई? बुक दिख रहा है तुमको? प्रियंका, किसको बुक नहीं दिख रहा है? इस पे पीडीएफ जो शेयर किया जा रहा है वो दिख रहा है? Therefore he did not want to undeceive him all at once, इस लाइन का मतलब है कि वो उसको चीट करना चाहता था, सीधी सी बात है, ठीक है। Now, yes, God knows things have gone downhill with me, he said. अब देखिए यहाँ पे झूठ बोल रहा है, yes बोल रहा है कि भगवान ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, okay. God knows things have gone downhill with me. I mean, I faced up lots of challenges and troubles, obstacles in my life, and finally I have come here. और मैं यहाँ पे देखिए किस कंडीशन में हूँ। Now, 38, 37 and 36. You should not have resigned from the regiment. अब यहाँ पे आपको समझ में आएगा, the person who was recognized by the owner of the iron mill was Nils Olaf. And who was Nils Olaf? Nils Olaf था कौन? इसके बारे में बोल रहा है। You should not have resigned from the regiment, said the iron master. आयरन मास्टर बोलता है कि तुमको रेजिमेंट से रिजाइन नहीं करना चाहिए था। अब इससे तो यही लग रहा है दैट निल्स ओलफ वाज बिलोंगिंग टू अ बैंड ऑफ आर्मी, ही वाज बिलोंगिंग टू अ रेजिमेंट, वो किसी आर्मी के बैंड से या रेजिमेंट से बिलोंग कर रहा था। दैट वाज द मिस्टेक, इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन इन द सर्विस एट द टाइम इट नेवर वुड हैव हैपेंड, ओके। अब ये बोल रहा है दैट वाज द मिस्टेक, यही गलती थी। इफ ओनली आई हैड स्टिल बीन, अगर मैं वहां रहता सर्विस में अभी तक, if I would be there in the service still at the time, it would never have happened with me. So this time will definitely not come to me. I'll not come to face up these types of difficulties and obstacles in my life. I'll never come here. तो मैं यहाँ नहीं आता. Well, now of course you will come home with me, Iron Master says to Nils Olaf.
इट इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग। ये अजीब सा हो रहा है, फॉकटेल्स जैसा लग रहा है कि पैडलर को कोई पहचान ही नहीं पा रहा है। वहां ओल्ड मैन के वहां गया तो ओल्ड मैन भी उसको बड़ी अच्छी सी हॉस्पिटलिटी दी, मेहमान नवाजी करी, एंड ही चीटेड एंड डिसीव्ड हिम, उसको धोखा दिया। यहाँ क्या है कि आयरन मिल में आता है तो आयरन मास्टर उसको अपना फ्रेंड समझ लेता है, नील्स ओलफ समझ लेता है। नील्स ओलफ कौन था? आर्मी रेजिमेंट का एक आदमी था, वो जो कि कभी उसका फ्रेंड हुआ करता था आयरन मास्टर का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आयरन मास्टर वाज इनवाइटिंग हिम टू कम इन हिज होम, वो अपने घर पे इनवाइट कर रहा है। देखिए अजीब सी बात है, अ स्ट्रेंज मैन इज बीइंग इनवाइटेड बाय टू मेन, दो लोगों के साथ इनविटेशन उसका होने वाला है। मीन एक का तो हो चुका है ओल्ड मैन के साथ, दूसरे का होने वाला है, ठीक है। वो भी बुला रहा है चलो मेरे घर चलते हैं, हाँ, टू गो अलॉन्ग टू द manor house and be received by the owner like an old regimental comrade, that however did not please the tramp। अब यहाँ पे क्या है, टू गो along up to the manor house, manor house का मतलब मालिक के घर जाना, ठीक है, मालिक के घर जाना, and be received by the owner like an old regimental comrade, and to be received and given hospitality like an old regimental comrade at his home, that however did not please the tramp। Tramp was not so happy। अब कोई भी रहे वहां पे, ओनर के घर जाना, किसी अच्छी पर्सनालिटी की तरह वहां सम्मान पाना, रिस्पेक्ट पाना, ये सब कुछ बहुत बड़ी चीज़ है। हाउ एवर, इसके बावजूद भी वो जो ट्रैम्प था, आई मीन पैडलर जो है, स्ट्रेंजर जो है, रागामफिन जो है, वो खुश नहीं है। क्यों नहीं खुश है? बिकॉज ही इज वरीड एंड स्टक विद हिज ओन लाइफ स्टाइल एंड इट्स सिचुएशन। वो अपनी परिस्थितियों में जूझ रहा है, इसके कारण वो खुश नहीं है। आगे चलते हैं अगले पेज पर। नो, आई कुड नॉट थिंक ऑफ इट। अब ट्रैम्प बोल रहा है, पैडलर बोल रहा है कि मैं इस चीज के बारे में नहीं सोच सकता। ही सैड लुकिंग क्वाइट अलार्म्ड। ओके, बहुत ही मतलब डरा हुआ सा है। ही इज शॉक्ड दैट ही इज बीइंग इनवाइटेड बाय द आयरन मास्टर एज समबडी एल्स। किसी और की आइडेंटिफिकेशन पे उसको इनवाइट किया जा रहा है। वास्तव में तो पैडलर है, स्ट्रेंजर है, ट्रैप सेल करता है, लेकिन उसको यहाँ पे एक रेजिमेंट कॉमरेड जैसा ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। अब क्या होता है, ही थॉट ऑफ द 30 क्रोनोर, वो 30 क्रोनोर के बारे में सोचने लगा। वो जो 30 क्रोनोर चुराया था ओल्ड मैन के घर से, उसके बारे में सोच रहा था। टू गो अप टू द मैनर हाउस, मालिक के घर जाना, वुड बी लाइक थ्रोइंग हिमसेल्फ वॉलंटरली इनटू द लायंस डेन, शेर के गुफा में अपने आप को ढकेलना होगा अगर वो आयरन मास्टर के घर जाता है। बिकॉज ही हैज स्टोलन 30 क्रोनोर, वो कहीं से चोरी करके आया, ही हैज रॉब्ड समवेयर, कहीं से रॉबेरी करके आया है, एंड ही हैज टेकन द प्रॉपर्टी, ही हैज टेकन द मनी अलोंग विद हिम। सो इट इज नेवर फेवरेबल फॉर हिम टू गो वॉलंटरली इन lion's den, because that iron master will call to the police and he will be arrested। ऐसा वो सोच रहा था। He only wanted a chance to sleep here in the forest and they sneak away as inconspicuously as possible। Okay, he wanted only have a shelter। वो सिर्फ वहां पे एक शेल्टर लेना चाहता था, शरण स्थल लेना चाहता था, वो वहां पे सोना चाहता था, और फिर चुपके से, बहुत ही स्मार्टली, एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके वो वहां से निकलना चाहता था। आई मीन शार्पली, मेकिंग अदर्स इग्नोर्ड, लोग उसको नोटिस न कर पाए, और वहां से वो जाना चाहता था। देन द आयरन मास्टर अज्यूम्ड दैट ही फेल्ट एम्बैरेस्ड। तब तक आयरन मास्टर को क्या महसूस होता है कि ये एम्बैरेस्ड फील कर रहा है, ठीक है। एम्बैरेस्ड का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा शर्माया हुआ, ठीक है। बिकॉज ऑफ हिज मिजरेबल क्लोथिंग, अपने फटे पुराने कपड़ों के कारण। ऐसा आयरन मास्टर समझता है कि लग रहा है ये फटा पुराना रैग पहना हुआ है, इसकी वजह से हो सकता है इसको थोड़ा सा अजीब लग रहा हो। प्लीज डोंट थिंक दैट आई हैव सच अ फाइन होम, यू कैन नॉट शो योरसेल्फ देयर, ही सेड। आयरन मास्टर कहता है कि ऐसा मत समझो कि मैं बहुत बड़ी पर्सनालिटी हूँ या बहुत बड़ी हस्ती हूँ, सो दैट
यू कुड नॉट शो योर सेल्फ देयर, कि तुम वहां पे नहीं जा सकते। आई एम ऑल्सो अ नॉर्मल पर्सन। एलिजाबेथ इज डेड, एलिजाबेथ मर चुकी है, ठीक है, मतलब बीवी मर चुकी है। एज यू मे ऑलरेडी हैव हर्ड, जैसा कि तुम पहले से ही सुन चुके हो। एलिजाबेथ कौन है? आयरन मास्टर की बीवी है, और ये उस आदमी को अपना फ्रेंड नील्स ओलफ समझता है, जिसकी वजह से वो अपनी आप बीती उससे कह रहा है कि मेरी बीवी तुम मर चुकी है, तुम पहले ही जान चुके हो। बिकॉज नील्स ओलफ वॉज नोन अबाउट द कैजुअलिटी। ओके, ऑलरेडी नील्स ओलफ जो थे वो इस कैजुअलिटी के बारे में जानते थे। माई बॉयज आर अब्रोड, और मेरे जो लड़के हैं वो बाहर हैं। एंड देयर इज नो वन एट होम एक्सेप्ट माई ओल्डेस्ट डॉटर, और मेरे घर पे मेरी बड़ी बेटी के अलावा और कोई नहीं है, ठीक है। ये बताता है आयरन मास्टर टू द स्ट्रेंजर, टू द रागामोफिन, उस आदमी से वो ये बात करता है।